Welcome to my YouTube channel. ट्रेन से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सुबह सुबह डैडी गए थे मार्केट। तो कांदा टमाटर यानी कि सब कुछ सब्ज़ी लेके आए थे। वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ यही था। तो हमने बनाए थे मॉर्निंग में एक हल्का खाना खाना था, तो दाल राइस बनाया था और फिर आराम किया दाल राइस बनाने के बाद में, और फिर मुझे ऑफिस भी जाना था इसीलिए। अगर घर 15 दिन बंद हो तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, राइट। तो आप देख सकते हो ये सब हमने क्लीन किया है आने के बाद। यहाँ आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैंने पूरे ये जो है ना हमारे जो स्टोरेज है, घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं विनिका दीदी के घर गई थी, क्योंकि हम दोनों को खारघर जाना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा समागम था इसीलिए। ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੈਰੀਕੇਡ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਨੇ ਆ? फोन रखो अपना अपने को, अगर गवाच गया तो इधर तो कितने लपड़ेंगे।
सुखदारा से प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो पुरसंग, एह मिलंग जम त्रास मिटाई, एह मिलंग जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਨੇ, ਕੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਖੇਲਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਗਰਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਗਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤੇੜ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਕਰਮ, ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਾਸ ਦਾਨ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲੂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਪੱਟ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਦਾ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੁੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹ ਪਛੇਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਵਾਕ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਰ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ
ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਵਾਉਣੀ, ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਮੱਲਣ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਫਰਿਆਦ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਵਰਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਫਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੋ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜੋ ਕਰਤਾ ਕੈਦ ਹੋ, खल्क को उससे भला नेकी की क्या उम्मीद हो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖੇ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਡਿਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰ। ਕਵੀਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਇਆ ਜੰਜੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਨਾ ਕੋ दिन गादी पर बैठे हो जोए काज तुम्हारा सारा सोए। ब्रिज भाषा दे बोल सन। कलयुग दे अवतार गुरु नानक देव महाराज ने उन्हां दे गद्दी नशीन गुरु तेग बहादुर ही हिंदू धर्म नूं रख सकदे ने, हुण होर कोई रख नहीं सकदा। इदां क्यों किहा शिव जी महाराज ने।
दरअसल ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे सेवा चल रही है, यानी कि जहाँ पे लंगर रेडी हो रहा है, वहाँ पे हम आए हैं। देख सकते हो आप। भाई मक्खन शाह लुभाना गुरु घर के सेवक थे। जब उनका जहाजी बेड़ा समुद्री तूफान में फंसा तो उन्होंने गुरु नानक जी के चरणों का ध्यान करके अरदास की, हे सद्गुरु मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए, मैं अपनी कमाई में से 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। तूफान में से सुरक्षित निकलने के बाद अपने घर के भौरे में भक्ति में लीन बैठे थे। मक्खन शाह ने जब उनको भी 2 मोहरें अर्पण की तो गुरुजी बोले, मक्खन शाह आपने तो 500 मोहरें भेंट करने का वादा किया था। इतना सुनते ही मक्खन शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो छत पर चढ़कर जोर जोर से बोलने लगे, गुरु लातो रे, गुरु लातो रे, गुरु लातो रे। संगत जी सच्चे गुरु मिल गए। 14 में मुंह कर कर कहे, पुल्ली संगत गुर है कहे। और भी जिस हरजीत वीर जी और विनिका दीदी मैंने इतने छड़ के गए ने। ये दीपू के बेबी का सोप और ऑयल है, क्योंकि जब वो गया था कल समागम में तो वो वहाँ से उसने कैरी किया था। और आज सुबह ही हम कल लेट नाइट हम दिल्ली से आए थे और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए हैं इसलिए। तो अभी देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया रहेगा घर में। वैसे तो मैंने तो खा लिया है लंगर। चलो डायरेक्टली अब मिलती हूँ घर पे जाके। ये देखिए मम्मी का चल रहा है, पुरानी बॉलीवुड मूवी देख रही है मम्मी। और यहाँ देखिए मम्मी पूरा घर क्लीन किया है मम्मी ने अभी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी जस्ट हम समागम से आए हैं खारगढ़ से, क्योंकि कल रात को जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 15 दिन से भी ज़्यादा घर बंद था। तो आपको पता है थोड़ा नीटनेस नहीं रहता घर में, पूरी धूल, सब जाले वगैरह लग गए थे घर में, मतलब पूरे घर में धूल थी। पैर जब हमने रखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल अब रात हो गई है। मेरी जो परजाई जी है वो तो बना के चली गई थी खाना, ठीक है। तो ये तो अच्छा हुआ कि खाना चलो हमें मिल गया था, क्योंकि हम लोग बाहर से ही खाने वाले थे। बट इतना टायर्ड हो गए थे ना मम्मी, मैं, डैडी, हम इतना टायर्ड हो गए थे कि और एक्चुअली हम जब आए ना तो वो हम हाईवे से निकल गए, ठीक है। तो हाईवे से निकल गए तो अब रेस्टोरेंट और हमारे पास लगेज है, तो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है अब घर तो खाना बन ही गया है तो रेस्टोरेंट में क्यों जाए, ऐसा करके हमारा एक ओपिनियन तीनों। हाँ
तो जैसे मैं बता रही थी, जब हम कल रात को आए समागम से, सॉरी समागम से बोल रही हूँ, रात को हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। अभी भी मैं टायर्ड ही हूँ, क्योंकि आप खुद भी अगर एक ट्रेन में ट्रैवल करते हो और 24 आवर्स के लिए, ठीक है, तो आप भी थक जाते होंगे। तो मैं, मम्मी, डैडी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर थकने के बाद रात को जब हम आए, हमने फ्रेशन अप हुए पहले हम, मतलब बात लिया मम्मी ने, डैडी ने, मैंने। उसके बाद फिर हमने खाना गरम किया। खाना गरम करने के बाद में फिर खाना खाया। पहले तो प्लेट्स वगैरह जो है उनको पहले धोया, लाइक यू नो, क्योंकि 15 डेज़ से कोई था ही नहीं घर में, राइट, और नहीं रहता तो धूल मिट्टी प्लेट्स पे भी लग जाती है। तो फिर प्लेट्स पहले क्लीन किया थोड़ा, उसके बाद फिर डिनर किया हमने। तो ये करते करते हमको करते करते 2 से ऊपर हो गया था, ठीक है। फिर हमारा रूम हमने थोड़ा चादर वगैरह सब चेंज किया। चेंज करने के बाद में फिर हम सोने के लिए गए। हम 2 बजे हम चले गए थे, मतलब 2 से ऊपर ही हो गया था टाइम जब हम गए थे। ऐसा हुआ बस। तो कल टायर्ड हो गए थे। फिर जब सुबह में हम लेट उठे, ठीक है, सुबह में लेट उठे तो समागम में जाना था। तो फिर सुबह में उठने के बाद सबसे पहले बैग्स को ओपन किया, क्या क्या लेके आए थे वो देखा। और फिर उसके बाद सब जो हम स्वीट्स लेके आए उनको फ्रिज में रखा। फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन किया। सब्ज़ी नहीं थी घर में, तो डैडी सब्ज़ी लेके आए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। सब्ज़ी लेके आए हैं डैडी, या फिर इसी ब्लॉग में स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। डैडी फिर लेके आए थे। तो जैसे मैं बता रही थी, फिर डैडी सब्ज़ी लेके आए। सब्ज़ी लेके आने के बाद फिर हमने दोपहर को खाना बनाते बनाते, आप बिलीव नहीं करोगे, सारा कुछ समेटते हुए, सारा कुछ सेटल करने में आप बिलीव नहीं करोगे, बट हमें खाना खाने के लिए 5 बज गए थे। आप मतलब पूरा घर को क्लीन करना, ठीक है। पहले सबसे पहले पूरा घर क्लीन किया। एक्चुअली उसका मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए था कि आप लोगों को भी पता चले। जो आई मीन सभी जाते होंगे, सबके घर में ही ऐसा होता होगा, बट जो काम हमने किया है ना, जो गॉड, एक तो ट्रेन का ट्रैवल, उसकी थकावट, और फिर घर आके क्लीन करना, उसकी अलग थकावट। मम्मी तो गई भी नहीं खारघर, मैंने 5 बजे, 4:30 बजे खाना खाया। 4:30 बजे खाना खाने के बाद मैं 5 बजे विनिका दीदी के घर के लिए निकली। फिर वहाँ पे फ्रेशन अप हुई। फ्रेशन अप होने के बाद में हम कुछ 6:30 बजे हम समागम में गए। और फिर वहाँ से हम अब कुछ अराउंड 10:30 बज रहे हैं। तो हमने पहले थोड़ी देर बैठने के बाद लंगर चखा। लंगर चखने के बाद फिर हम घर आ गए 10:30 बजे। अभी हम घर आए और अराउंड अभी 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे। तो अभी मैं सो जाती हूँ। कल शायद मुझे ऑफिस जाना है। पहले तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ फ़ोन करके उनको, जब उनको मैं रिपोर्ट करती हूँ कि कल ऑफिस है या नहीं, क्योंकि होली की शायद छुट्टियाँ दी है। तो अब होली की कब छुट्टी है ये तो मुझे नहीं पता, तो मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा। तो ऑफिस में एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आई एम कमिंग टुमारो, ऐसा बस। और आप सब बताइए कैसे हैं, और अगर आपने हमारा व्लॉग देखा है, फ़्लाइट वाला व्लॉग भी प्लीज़ देखिए, और मैंने शादी वाला व्लॉग डाला है वो भी प्लीज़ देखिए। कमेंट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो देखिए प्लीज़ आपके कमेंट्स की, अगर आपके कमेंट्स आएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बताओगे तो मैं वो करूँगी ही, या फिर मैं वो नहीं करूँगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट प्लीज़ आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपकी जो भी लाइक आप सजेस्ट करोगे कि नहीं आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, तो आप कि बताइए एटलीस्ट, तो मुझे पता चलेगा कि एटलीस्ट मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जाइए, पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब हमारे, ताकि आपको पता चले कि हमारा व्लॉग आ चुका है ऐसे। और बस दिल्ली में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अभी तो। हाँ जी, बैक अगेन, और इस ब्लॉग को करेंगे हम यहाँ पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में
एक अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ में देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा। ये तो समागम वाला ब्लॉग आएगा जो हम दिल्ली से आए हैं और क्या क्या किया है, किस तरह से आज का दिन पूरा गया है, वो उस बारे में है। ठीक है, तो आप सब बताइएगा आपको ये वाला ब्लॉग किस तरह कैसा लगा हमारा। ठीक है, और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल और हाँ जी, और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलो जी, बाय बाय बाय।